वैसा शुरुआत करने का वो तन्मय भट्ट करते वैसे हेलो हेलो वेलकम टू अनदर एपिसोड। अच्छा वो इसमें अपन एंडिंग लिया नहीं बिकॉज क्रिस्टल्स इज समथिंग which helps you as a support it is and it is actually हाँ पर ठीक अपनी जनरेशन को खाली एक ही दिखता है ना, अच्छा क्या दिखेगा रखने के लिए तो कुछ भी फर्क पड़े, एस्थेटिक क्या है। ये अच्छा पत्थर है। दिस इज अ मॉम। I thought this is a mom. So you mean to say that spiritual is cut इधर हमारे बीच में बैठ जरा लेते आजा। अरे हे काय मला त्राई लगी गुंजा राहिला ऐसा बस हो गया, एनर्जी खत्म अभी खत्म हो गया। ये आपके पास कहाँ से एनर्जी आता है? मैं तो मेरे को पी के भी बोर्नविटा पी के मेरे पास नहीं इतना एनर्जी आता है। Right, so welcome back. It's been almost a week. मतलब आपके ही घर में आपको वेलकम बैक बोलना मुझे अजीब लग रहा है बिकॉज आई हैव कम हियर बट देन इट्स बीन अ वीक एंड a lot of things. I must say personally I have been thinking about a lot of stuff that we discussed last, a lot of things that came to me, and I am a researcher by default, so you know, going back I did a little bit of research in my free time about these modalities, and I must say there's a lot of positive things that I have come across. Of course ये सब तो belief की बातें हैं कि whoever want to believe, but I've understood one thing very very clearly. अगर आपको कुछ चीज़ डेवलप करनी है तो उसमें पूरा 100% बिलीफ, लाइक वी डिस्कस लास्ट, 100% आपको वही करना होगा एंड पूरा जान डाल के करना होगा, बट द बिलीफ फैक्टर इज समथिंग वेयर वी ऑल लैक. हम हाफ हार्टेड एफर्ट्स लेते हैं. आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द इंस्टाग्राम स्टोरीज अबाउट अच्छे लोगों के साथ इतना अच्छा क्यों नहीं होता जितना बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है. इट इज नॉट अबाउट लक, एंड द स्टेटमेंट वाज लक डजंट फेवर व्हाट यू whether you are good or bad, it favors alignment. So what is it that you really want and how much are you willing to give an efforts? So with one, I can say personally I have been giving much more efforts to a lot of inputs that I keep receiving inputs from you, and naturally business grow करना है तो ये हमारे में तो थॉट प्रोसेस है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहो, सोचते रहो, डेवलप करते रहो, तो बी ओपन अबाउट थिंग. दैट इज व्हाट रिसर्च इज ऑल अबाउट. क्रिएटिव. करेक्ट. So थिंकिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर्सनल लेवल पे चेंजेस लाने के लिए सिर्फ सोच ही जरूरी है. So even we have not sat for a personal regression session or anything, but just the idea, the seed that you planted, that you start thinking in this line actually has done remarkable changes inside the mind, and that is what we all are seeking, inner peace. So harmony. Yes. So today I want to ask you about your experiences with some of your clients. Of course I don't want any हमारे लाइन में हम disclose नहीं कर सकते हैं on the names and identities, but it has to be a professional secrecy. Yes, but the stories. Today I want you to tell us stories about how you help people, how you help some or the other person, ये inner peace में, ये achievements में, to solve their problems. How has that spirituality, because हर चीज़ का एक output होना चाहिए, सिर्फ सीख के या नॉलेज लेके फायदा नहीं है. I have learned a lot of things. What matters is at the end what is the result. Yes. We want the result. Correct. आप कुछ भी करो, लास्ट में क्या होना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए. पॉजिटिव रिजल्ट. Correct. राइट. तो definitely there are a lot of stories and with my lot of my clients with whom I have worked, and I have used different modalities on them. Okay. जैसे मेरा एक client था, and he was actually in drug addiction. Oh. Yeah, a young boy of 32 years, your age only, and I think from the age of 24, 25, he was taking drugs to certain extent. At that age? Yeah. Okay. He was taking, and he was into, and when he came to me, not only physically, but mentally also he was distorted. Okay. He was disturbed. He didn't want to live. He had tried 2-3 times suicide. Oh. मतलब उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी.
पहली बार जब भी वो आया तो वो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं था. ही वॉज सेंट बाय हिज मदर. बात ऐसी हुई कि मम्मी साथ में आई थी, लेकिन मम्मी साथ में आने के बावजूद उसने मम्मी को मेरे पास औरा सेंटर में आने नहीं दिया. उसने मम्मी को कहा कि करके तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ा ना, तुमको चाहिए था ना मैं यहाँ आऊँ, मैं आया हूँ. ओके. मैं मैडम से बात करूंगा, जो भी है तुम यहाँ से चले जाओ. ओके. एंड लिटरली दैट लेडी, यू नो, शी वाज इन टीयर्स बिकॉज शी वाज कंसर्न्ड ना. बेटा उसकी कंडीशन ऐसी है, तो मैंने उनको समझाया कि आप जाओ, मैं देख लूंगी जो भी है. दैट बॉय दैट डे सैट विथ मी फॉर अराउंड 2.5 hours. ओके. Starting half hour 45 minutes, he did not speak anything. मैं उसको पूछती रही कि कैसा बेटा, तुम क्या करते हो, फिर तुम्हारा क्या है. नहीं, मुझे जीना ही नहीं है, मुझे मरना ही है, ऐसा ही है वैसा ही. He was all negative. 45 minutes he was just. I was just listening to him. Then slowly, steadily, na, and I was putting symbols. Reiki symbols है, करुणा Reiki symbols है, साइकिक सर्जरी सिंबल्स है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उसके सिंबल्स होते हैं, हीलिंग सिंबल्स. सो आई एम पुटिंग सिंबल्स एयर में ऐसे. ओके. तो मैं उससे बात करती करती ना, आई वाज गिविंग द सिंबल्स, आई वाज गिविंग द हीलिंग टू हिम. ओके. लेट हिम रिलीज, लेट हिम स्पीक. थोड़ी देर बाद वो बोलने लग गया कि उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स बोलने लगे. फिर वो बोलने लग गया कि उसके फैमिली में उसके फादर के साथ उसके कितने इश्यूज हैं. ओके. फिर वो बोलने लग गया कि उसके कॉलेज के जो फ्रेंड्स है वो ऐसे थे कि बस पैसे की पहले ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो लोग उसको ला के देते थे और वो ले लेता था. ओके. बाद में ऐसा हुआ कि पैसा तो वो लोग देते नहीं थे, फिर ये घर से इधर उधर से चोरी करता था. मांग के लेता था, कभी चोरी करता था, कभी कुछ झूठ बोल के लेता था, ऐसा करके वो लेने लग गया. एंड देन ही गॉट दैट हैबिट सो मच, ही वाज एडमिटेड मेनी टाइम्स. घर के लोगों को पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो कर रहा है, ही इज टेकिंग समथिंग. फिर उसको एडमिट भी किया, 3-4 बार 5 बार वो एडमिट हुआ. एंड ही वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन. वो सब मुझे बोलना चालू हो गया अपने आप. ही स्टार्टेड टॉकिंग. आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हिम. ओके. यू नो, listening itself is a healing. Every human being on this earth, every human being, whether he is masculine or feminine, whether he is an old man, whether he is a young child, small child, whether he is a woman, whether it's a girl, whoever, every type of human being belonging to any community, any country wants listening ear. हम क्या करते हैं मालूम है? हम किसी का सुनते ही नहीं. हम सुनते किसके लिए? जवाब देने के लिए. लोगों को सुनना होता है सिर्फ सुनने के लिए. उनको सिर्फ इतना होता है कि ये मुझे सुन ले. yes. ये मुझे सुन ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मुझे सुन ले. मुझे बोलना है, मुझे खाली होना है, मुझे एम्प्टी होना है, और ये मुझे सुन ले. दैट इज द ओनली थिंग. सो आई जस्ट लिसन टू हिम and I just made him empty and he started crying. Suddenly he started crying. He broke down. पहले तो बोल रहा था नहीं मैं सुसाइड करना चाहता, मैंने ऐसा किया था वैसा किया था. बाद में वो बोलने लग गया, yes I want to live. मतलब you want to live? Yeah, I want to live. ठीक है, तो अभी कल से क्या करना है? सुबह उठना है, बस सुबह 5 बजे 6 बजे तुम निकलो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, यू नो, रनिंग करो. तो ये यंग मैन, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जिटी है, उसको यूटिलाइज करो. एंड बी इन अ गार्डन, वॉक ऑन ग्रास विदाउट योर शूज. यू शुड वॉक ऑन द ग्रास सो दैट यू शुड टेक द फोटॉन्स. ये सब चीजें ना, दिस इज अ ट्रीटमेंट, नथिंग एल्स. तो उसको मैंने इस तरह से अलग अलग चीजें बताई. उसके डाइट में उसको क्या चेंज करना है. फिर उसको कुछ मेडिटेशंस दिए, सिंपल टेक्निक, सिंपल मेडिटेशंस. कुछ प्रोसेस बनाए, जैसे वाइट लाइट खुद के ऊपर कैसा लेना है, वाइट लाइट मेडिटेशन. जैसे एक होपोनोपोनो मेडिटेशन होता है, दैट इज ओनली 4 थिंग्स. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. ये 4 ही सेंटेंसेस है, उसमें बार बार रिपीट किए हुए, बट इट वर्क्स ग्रेट. वो उसको कुछ बताया. इस तरह से आई थिंक
अराउंड 6 मंथ्स लगे मुझे, और कुछ 5-6 सेटिंग्स में उसका ड्रग एडिक्शन तो बंद ही हो गया. टुडे दैट बॉय इज वर्किंग इन अ वेरी गुड फर्म ऑन अ वेरी गुड पोजीशन. ही इज गोइंग एवरी डे, इज कमिंग बैक, एकदम अच्छे से खाना भी अच्छे से खाता है, बात अच्छे से करता है सोसाइटी में अभी, और अभी शादी की बात चल रही है. Oh, that's a really inspirational story because, and to be very honest, as a counselor, we deal with so many such people. Drug addiction actually बहुत difficult होता है. Yes. So, just counseling doesn't help. Yes. So there you have to put in all your efforts towards medicine, towards non-medical things. If अभी और एक नया चीज़ मुझे मालूम पड़ गया, spirituality can actually help a lot. So, if we bring these all things together, probably we can create the best formula to, get out of addiction. Yes, sir. Okay, relationship का अगर बात किया जाए, so have you come across such couples with having relationship problems? Because to be very honest, as a counselor, मेरे पास हर रोज आता है, बहुत सारे लोग आते हैं. It's become a very major problem in the world today because dominance shift हो गया है, then independence shift हो गया है. The paradigms have entirely changed. The way the couples used to live before, their dependencies, their thinking processes, their needs and their wants and their likes, dislikes, बहुत अलग थे तब. And here I'm feeling it has become too much of variations have caused these problems. Yes. So have you come across those couples, and if you've come across, how did you actually solve those issues? रिलेशनशिप्स, यू राइटली सेड, आजकल रिलेशनशिप्स में बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं. पहले जो रिलेशनशिप्स लोग मेंटेन करते थे और अभी जो रिलेशनशिप्स लोग मेंटेन करते हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. पहले कैसे था कि देयर वाज जॉइंट फैमिली, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में क्या था कि सभी लोग घर के बाकी के जो फैमिली मेंबर्स थे ना, इनको सबको भी एडजस्ट करना पड़ता. तो इसमें क्या होता था, लेडी जो होती थी वो सप्रेस्ड हो जाती थी, उसकी इमोशन सप्रेस्ड हो जाती थी, क्योंकि वो जो करना चाहती है, वो बोलना चाहती है, उस नहीं होता था. शी वॉज डिपेंडेंट. मोस्टली शी वॉज होम मेकर. ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है आज. होम मेकर थी. आज का आप जनरेशन देखो, नो गर्ल आफ्टर मैरिज वांट्स टू सिट एट होम. और ऑफकोर्स जो हाईली एजुकेटेड है वो तो घर में बैठेंगे नहीं, राइट? बैठना भी नहीं चाहिए. व्हेन यू आर, इट इज नीड ऑफ द आवर. आज दोनों कमाएंगे तो आप ब्रेड बटर और जैम सब कुछ खा सकते हैं. Yes. तो क्या हो गया, अभी न्यूक्लियर सिस्टम में हम आ गए. न्यूक्लियर सिस्टम में फैमिली में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे होते हैं, 1 बच्चा होता है. कभी कभार आजकल तो कपल्स ऐसे कि उनको 1 बच्चा भी नहीं चाहिए, दोनों है बस हो गया, ठीक है, वी आर हैप्पी, वी आर लिविंग अ लाइफ. इंडिपेंडेंट है, खुद के डिसीजंस खुद लेते हैं. लेकिन फिर वो जो बाकी के जो लोग होते हैं ना, बाकी के जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनसे दूर चले जाते हैं, इनसे हट जाते हैं. तो कई बार उनमें क्या हो जाता है प्रॉब्लम, ही इज वाइफ है तो वो वाइफ को, उसको अटैचमेंट है तो वाइफ को छोड़ना भी नहीं है, लेकिन वो बीच में बेचारा पिस जाता है. उसको एक साइड से उसकी मम्मी, उसके डैडी, उसके मतलब पेरेंट्स, सिबलिंग्स खींचते हैं, एक साइड से वाइफ खींचती है, और बीच में वो सैंडविच हो जाता है. ये ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं. Okay. So आप spirituality को, as in healing modalities को use करके, how have you changed these? तभी उनको काउंसल करना पड़ता है, तभी उनको ये बताना पड़ता है कि यू हैव टू एडजस्ट जस्ट लाइक वाटर. जैसे पानी को आप अगर ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेता है, आप उसको कप में डालो तो कप का शेप ले लेता है, आप उसको बकेट में डालो तो बकेट का शेप ले लेता है. Okay. तो औरत जो होती है ना, फेमाइन, वो भी वैसी ही होनी चाहिए. शी शुड बी एडजस्टेबल, शी शुड बी अडेप्टेबल, बिकॉज इन बिल्ड शी इज लाइक दैट. आप देखो विशाल, जो लेडीज होम मेकर होती है ना, उनके हस्बैंड्स दिन भर काम करते, बाहर रहते हैं, और ये जो लेडीज रहती है घर में रहती है, तो ये घर में दिन भर काम करती रहती है, राइट? एंड देन वो शाम को जब भी आते, उनको बोलना होता है, बताना होता है. और जो हस्बैंड घर पे आता है वो चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वो ट्रेन से आता है,
ये मुंबई की लाइफ तो ऐसी है, मुंबई में तो हालत बहुत खराब है, कमिंग बाय ट्रेन 2 आवर्स 3 आवर्स तो आदमी पूरा खत्म हो जाता है उसमें, वो सुनने को तैयार नहीं होता। इससे क्या होता है, द डिफरेंसेस स्टार्ट बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। इफ देयर हैज टू बी अ हेल्दी रिलेशनशिप between the husband and the wife, then the husband has to listen to the wife because she needs someone to communicate. वो किसको बोलेगी, बाजू वाले को तो बोल नहीं सकते, राइट, कि भाई मुझे कुछ बोलना है, राइट, वो किसको बोलेगी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव करती है, जिसको वो अपना समझती है। Okay, so off recently have you actually come across on the top of your head ऐसा कोई आप एग्जांपल मेरे को दे सकते हो जो where using any of these modalities you have actually helped them solve issues, because then there are mother-in-law daughter-in-law issues, there are father-in-law son-in-law issues, there are husband-wife issues, there are father-son issues, ये सब चलता है। How can these modalities help? I want to know that, because ये प्रॉब्लम सब जगह पे है, and every time counseling won't work, or counseling will work but it takes something. It needs some support. It needs some support. Yes. And we have these issues. Definitely. Very recently, one couple came to me and they have a problem. एकदम minute चीज से प्रॉब्लम चालू हुआ। क्या था कि दोनों ने गाड़ी ली, दोनों ने मिलके गाड़ी ली, और जब भी वो शोरूम से गाड़ी घर तक लेके जाने वाले थे तो उनका था कि अपने पेरेंट्स उसमें बिठा के वो लेके जाए। अब जब गाड़ी शोरूम से बाहर निकल रही थी तभी उन पेरेंट्स में ही कुछ प्रॉब्लम हो गए, उनमें आर्ग्यूमेंट्स हो गए। ओह। तो ये इस दो जो कपल जो था वो उन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन फिर भी माँ पिताजी के झगड़ों की वजह से उनमें स्ट्रेन आ गया। ओके। तो दोनों भी अनहैप्पी थे, तो दोनों जब मेरे पास आए तो बोले करके मैम ऐसा ऐसा हो गया है एंड हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो गए हैं। तो वो जो लड़की थी वो बोल रही मेरी सास के साथ मेरे रिलेशनशिप्स खराब हो गए, और जो लड़का है वो बोल रहा है मेरे सास के साथ, मेरे इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप खराब हो गए। तो दे वे लाइक, तो मैं आई वर्कड ऑन देम, उनको मैंने साइकिक सर्जरी सिखाई कि उनको पहले खुद के माइंड को क्लियर करना है, माइंड के ब्लॉक्स क्लियर करने हैं। फिर उनको मैंने करुणा रेकी करके एक मोडालिटी है जिसमें हम बहुत सिम्बॉल्स होते हैं, हीलिंग सिम्बॉल्स हैं, वो सिखाए। उनको बोला आपको लव और कंपैशन देना है। साथ में ही उनको कुछ क्रिस्टल्स दिए। मैंने वो लड़की को बोला कि यू हैव टू गिव सम क्रिस्टल्स टू योर मदर इन लॉ एंड टू योर मदर, गिफ्ट इट टू देम। उनको गिफ्ट करो और उनको पहनाओ, बिकॉज क्रिस्टल्स रियली डू वर्क। तो क्रिस्टल हीलिंग भी करवाई। सो ऐसे 3-4 मॉडलिटीज साथ में कंबाइन करके आई वर्कड ऑन दैट कपल and today they are very happy again. उनके relationships फिर से ठीक हो गए। I had a couple who had differences with them, relationship differences, and this only joint family problem was there. Once I listened to the husband, then afterwards I listened to the wife separately, because if they were made to sit together, then they would have not opened up properly. Then there is a healing modality which is known as psychic surgery. Okay. What is psychic surgery? Psychic surgery, we actually work on the mind. It is surgery of the mind. And in that, what we do is that we have certain symbols and we have a process. We make use of the crystals. Psychic surgery is actually a very old traditional method. Okay. And in that, what we do is that with the help of the crystals, we work on the mind of the person. So whatever problems the husband is having, the wife has to work on him by doing his psychic surgery. Psychic surgery we can do of ourselves also. Okay? Because what is psychic surgery is actually formulating everything. फॉर्मेट मारना, जैसे हम नया फोन लेते तो हम फॉर्मेट मार देते हैं, वैसे ही हमारे माइंड से सब कुछ फॉर्मेट मारना इज साइकिक सर्जरी इन प्लेन सेंटेंस। तो जो भी आपके दिमाग में है या जो भी आपने होल्ड किया है, जो भी आपको हर्ट्स है, जो भी आपको इंसल्ट्स है, मैंने हस्बैंड को बोला कि भाई तुमको ये ऐसे साइकिक सर्जरी करना है, ये प्रोसेस करना है, और तुमको ये करना है कि खुद के ऊपर
तुमको साइकिक सर्जरी करनी है पहले, और तुमको एक खुद को अफर्मेशंस डालने हैं, खुद को इंटेंशंस डालने हैं कि आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विथ माई वाइफ, आई मेंटेन माई रिलेशनशिप विथ माई वाइफ एंड हाउ यू वांट हर टू बी, वो चीज़ आपको बोलनी है। दिस वी हैव टू डू कंटिन्यूसली फॉर 21 days, देन 42 days, इसको बढ़ाना है। जितना आप बढ़ाएंगे उतना वो काम करेगा। ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने ये साइकिक सर्जरी मेरे बेटे के लिए यूज़ की थी, उसका विल पावर बढ़ाने के लिए यूज़ की थी ड्यूरिंग सर्जरीज एंड ऑल। तो वो कपल को भी मैंने इसी तरह, आई मेड द लेडी टू वर्क ऑन हर सेल्फ साइकिक सर्जरी करके। एंड देर इज वन मोर मॉडलिटी विच इज नोन एज करोना रेकी, करोना कर्मा रेकी। तो उसमें भी कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, एंड आई टोल्ड हर, आई टॉट हर दैट थिंग एंड शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। वो सिम्बॉल्स, दैट इज कंपैशन, दैट इज लव, नथिंग, just love and compassion will dilute everything, क्योंकि वो ही एक चीज है जो दुनिया में जिसके ऊपर पूरी यूनिवर्स चलती है। सो और दूसरा और एक बात है, उनको मैं काउंसल करती रही और उनको ये भी बोलती गई कि आप लोग ना एक दूसरे के साथ क्रिस्टल क्लियर रहो कम्युनिकेशन में। आपके अंदर कोई बात आ रही है, कोई हर्ट आ रहा है, तो आप डायरेक्टली बोलो कि मुझे ये चीज़ आपकी पसंद नहीं आई, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या है। सी देयर कैन बी डिफरेंसेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बट देयर शुड नॉट बी आर्ग्यूमेंट्स, देयर शुड नॉट बी फाइट्स। रिलेशनशिप में डिफरेंसेस होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप अलग हो, वो अलग है। ट्रू, राइट, वेरी ट्रू। हाँ, कोई भी सही या गलत नहीं है, डिफरेंट है। रिलेशनशिप से ही एक वन मोर क्वेश्चन, पर्सनल इंट्रीग, सोलमेट्स ये कॉन्सेप्ट या ट्विन फ्लेम्स जैसा हम कहते हैं, what does your spirituality define it to, or what do you have, what is your definition, what is your understanding, या आपका क्या कहना है इसके बारे में? Are is something like that होता है? या होता है। there are 3 things. वन होता है सोल ग्रुप, एक होता है सोलमेट, और एक होता है ट्विन फ्लेम। ओके, 3 अलग चीजें होती है। सोल ग्रुप क्या होता है? सोल ग्रुप वो होता है जो आपके रिलेशंस में हो, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आप जो लोगों को पहचानते हैं, वो होते हैं आपके सोल ग्रुप। ओके, ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझा जाता है स्पिरिचुअलिटी में कि सोल ग्रुप क्या होता है, वही लोग, वही सोल्स जो आपसे कनेक्टेड है, जिनके साथ आपका कर्मा है, जिसके साथ आपका गिव एंड टेक है, वही बार बार आपके साथ आते रहते हैं। ओके, तो ये लाइफ में जैसे यू आर माई स्टूडेंट नाउ, तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट और टीचर की है, Yes. राइट? तो कोई लाइफ में हम भाई भाई हो सकते हैं, हम बहन भाई हो सकते हैं, यू नो। ओके, तो कुछ भी रिलेशन, तो वही रिलेशंस में वापस लोग आते हैं, अलग अलग रिलेशंस में वही सोल्स अपने साथ आते हैं, दैट इज सोल ग्रुप। क्योंकि हमारा कुछ उनके साथ लेना देना बाकी होता है। ओके, ओके, मेरा मुझसे है पहले का नाता कोई टाइप्स। डेफिनेटली। वैसे ही सोलमेट्स होते हैं। Okay. सोलमेट्स वो होते हैं, नॉट एक ना मिथ है कि सोलमेट मतलब हस्बैंड एंड वाइफ या फिर पार्टनर्स, वही सोलमेट होते हैं। ओके, दिस इज टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है। आपके पेरेंट आपका सोलमेट हो सकते हैं, आपके मम्मी आपकी सोलमेट हो सकती है, आपके पापा आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपका भाई आपका सोलमेट हो सकता है, आपकी बहन आपकी सोलमेट हो सकती है। सोलमेट वो होता है जो आपके साथ बहुत अच्छा होता है, ट्यून्ड होता है, जिसके साथ आपकी वेवलेंथ बहुत अच्छी होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है। ओके, जिसके साथ आप एक होता है नीचे और एक होता है ऊपर, और नीचे वाला उस ऊपर वाले को, ऊपर वाला उस नीचे वाले को खींचता है। ओके, सो यू आर सेइंग सोल्स का कनेक्शन, सोल्स का कनेक्शन, 2 सोल्स में बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। Okay. तो वो इसके लिए, वो एक दूसरे को ग्रो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअली वो एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं। ओके, कभी कभी एक दूसरे को सिखाने के लिए आते हैं, एक दूसरे को लेसन्स देने के लिए भी आते हैं। ओके, तो वो होता है सोलमेट। सोलमेट हमारे एक नहीं, 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। ओके, सो नॉट नेसेसरली कि वो हमारे जिंदगी में हमेशा के लिए रहे, लाइक यू, और इज इट दैट
नहीं, अगर उनका काम हो जाए, वो जो सिखाना चाहते समझाना चाहते वो बोल दिया उन्होंने और वो काम हो गया, तो वो निकल भी जाते हैं अपनी जिंदगी से। द रीजन, यस। और एक रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं ट्विन फ्लेम। ओके। हाँ, तो ये आजकल तो बहुत चल रहा है, यूट्यूब पे आप देखेंगे, सब इधर देखेंगे तो ट्विन फ्लेम exactly. सब हर कोई बोलता है। तो उसको तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ओके। इट डजंट हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ। ओके। लेकिन फिर वो बात आती है ना, बिलीव, ट्रस्ट, फेथ, राइट? सो इफ यू बिलीव इन दैट, यस, ट्विन फ्लेम इज वन सोल, टू डिफरेंट, डिवाइडेड इनटू टू। ओह, ओके। वन सोल डिवाइडेड इनटू टू। एक होता है मस्कुलाइन, एक होता है फेमिनाइन। ओके। दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। ओके। मतलब हमेशा नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्विन फ्लेम्स में झगड़े होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, और वो एक दूसरे को पुल एंड पुश ही करते रहते हैं। ओके। और वो ऐसे रिलेशनशिप होती है ना, प्यार बहुत होता है, लेकिन प्यार के साथ साथ उन लोगों में एक दूसरे को सिखाने की चीज होती है, ईगो होता है, सब कुछ होता है। ओके। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट रिलेशनशिप होता है। ओके। राइट? लेकिन उसका एंड क्या होता है कि दोनों ग्रो करें, दोनों इवॉल्व हो, दोनों आगे जाए। So the end result is positive. End result is, because it's one soul. Yes, it is one positive. It is light side and dark side. Okay. Together. Okay. तो हर एक में लाइट साइड डार्क साइड होती है, तो वो एक दूसरे की डार्क साइड छिड़ते रहते हैं। Okay. Okay. So ये can spirituality, because you spoke about twin flames and soulmates, I just thought about something. Can actually spirituality help the younger generation? Because आजकल ऐसा हो रहा है कि there are very wrong relationships people get into, and they call toxic relationships. मेरे सामने हमेशा ये word आता रहता है with the Gen Z specifically, and उसके बाद it seems like they are always with the wrong people. Can spirituality guide them into, or guide someone into finding the right person for themselves? Yes, definitely spirituality can guide. Because nowadays what is the condition is that people are not ready to take any responsibility. कोई कमिटमेंट नहीं है। आज इसके साथ रिश्ता है, कल उसके साथ रिश्ता है। There is no commitment. भाई जितने दिन साथ हैं साथ है। Situationships कहते हैं Gen Zs उसको। Yeah, you are of this generation, so you can tell me better this. Yes. और ऐसा है ना कि शादी करना जरूरी नहीं है आजकल, कि लिविंग रिलेशनशिप में रह जाए। Right. उसमें भी जम गया दोनों का तो अच्छा है, रह के देखते हैं। नहीं जमा तो बस तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। मीन्स इट हैज बिकम, पीपल हैव बिकम सो इंडिपेंडेंट, पीपल हैव बिकम सो ओपन। इसकी वजह से रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड। और फिर ना वो सोचते हैं कि हम रिलेशनशिप कट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इमोशनली वो फिर भी कनेक्टेड रहते हैं। Okay. The bond is there. कहीं तो भी कुछ तो रह जाता है, और वो कुछ रह जाता है ना, तो वो चीज जो है ना, जो छोटी सी एक वूंड होती है ना, उसको अगर आप हील नहीं करेंगे ना, तो वो क्या होता है, नासूर बन जाता है। हाँ, करेक्ट। वो बन जाता है नासूर आपकी मोडालिटी में। गैंग्रीन हो जाता है ना। तो जब वो गैंग्रीन हो जाता है, उसको काट के फेंक देना पड़ता है। करेक्ट। राइट? तो वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है दोनों के लिए। ओके। राइट? तो वो चीज नहीं हो, वो इमोशनल ब्लॉक नहीं बने, इसके लिए कुछ चीजें करनी चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए बहुत सारी मोडालिटीज हैं, जैसे आप ओरा स्कैन कर लो। ओके। ओरा स्कैन करो, उसके बाद आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट लो उसके ऊपर। ओके। यू वर्क ऑन योर रूट चक्रा। ओके। You work on your sacral chakra, you work on your manipura, you come out of that energy, you go in awareness, as you evolve, you work on your third eye, you work on your heart chakra. Emotions को निकालो, उसको रिलीज करो, उसको छोड़ दो, उसको फॉरगिव करो, अपने आप को भी फॉरगिव। भाई कई बार लोग ना अपने आप को फॉरगिव नहीं कर सकते। गिल्ट आ जाता है, मैंने गलत कर दिया, राइट, मैंने गलत बोल दिया, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस पर ना करुणा रेखी बहुत काम करती है। ओह, ओके। दैट इज हीलिंग। तो अपने आप पे सिंबल्स डालते रहो, आप खुद हील होते रहो।
Okay. Do you guide younger ones? yes I tell them. मैं तो पहले उनको बोलती हूँ कि भाई आप हीलिंग मोडालिटीज सीख लो. मैंने मेरे बेटे को बहुत सारी मोडालिटी सिखाई है. अच्छा. मैंने मेरे बेटे को बताया है कि उसको बहुत सारे अटेनमेंट्स दिए हैं मैंने. Okay. और उसको मैंने ये कहा है कि भाई तुमको यू हैव टू लर्न दिस नॉट फॉर अदर्स, फॉर योरसेल्फ. Right. क्योंकि ना हमको पहले अपने पे काम करना है. Absolute. बिल्कुल सही है. जब हम अपने पे काम करते हैं हम ऑटोमेटिकली दूसरों पे काम कर रहे हैं. Right. We have to heal ourselves. We have to evolve. कैसे? बस अपने आप पर आप खुद सेल्फ रियलाइजेशन करते रहो. There is a technique which is a very beautiful technique of Gautam Buddha. Okay. That is called Vipassana. Hmm. मैं विपश्यना करने जाती हूँ. मैं ये मोडालिटी में खुद फॉलो करती हूँ. कई बार मैं विपश्यना के लिए गई हूँ. 10 दिन. Finding yourself कहते हैं ना. Finding self realization. Yes. You have to enter yourself inside. Correct. जितनी मोडालिटीज मैंने देखी ना, बहुत से ये सब मोडालिटीज क्या है, हम बाहर देखते हैं, हम बाहर करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं. सेल्फ रियलाइजेशन हमको होता है विपश्यना से. Okay. हमको अंदर जाना है. विपश्यना हमको सिखाती है अंदर जाना. विपश्यना एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें आप 10 दिन किसी से बात नहीं करते हो. यू डोंट हैव टू टॉक विद एनीवन. Okay. आपके पास कुछ भी नहीं होता है. आपका मोबाइल नहीं, आपको कोई न्यूज़पेपर नहीं दिया जाता, कोई बुक नहीं दी जाती रीडिंग के लिए. Okay. हाँ, आपको कोई टीवी नहीं दिखाया जाता, आपको कुछ नहीं. ओनली यू एंड योर थॉट प्रोसेस. यू एंड Like you said last time, गौतम बुद्धा तो नहीं बन सकते, but if we try to walk on that path, also we can find inner peace. Yes. At least to the three chakras that you said. डेफिनेटली yes. That's a good message for the younger ones. तो आपको अगर पीस चाहिए ना, तो आपको पहले आपके अंदर की आवाज सुननी पड़ेगी. हम क्या करते हैं, दूसरों की आवाज पहले सुनते हैं. हम दूसरों को सुनाते रहते हैं और दूसरे ने सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बम्बार्डिंग हमारे ऊपर ही होती रहती है. क्योंकि हमारे अंदर एको होते रहता है. करेक्ट. वो एको होते रहता है ना, बार बार वो आवाज वही चीज बोलती रहती है. तो उसको समझना बहुत जरूरी है. इनर वॉइस. बिकॉज द इनर वॉइस लीड्स यू टू योर हायर सेल्फ. ओके. एंड दैट इज द बेस्ट मॉडलिटी आई फाइंड. तो वो आप में इतना चेंज लाता है ना, इतना चेंज लाता है आप में कि आपको ऐसा लगता है कि करके 10 दिन बाद अब जब बाहर निकलते हो तो आपको ऐसा लगता है मैं किसी से बात ना करूं, मैं अपने आप में रहूं. फिर आप कोई भी प्रॉब्लम को लाइफ के ना 360 एंगल से देखने के लिए तैयार हो जाते हैं. सो आई फील इतना सब सुनने के बाद, इतना समझने के बाद, आई फील ऑल द कीपिंग असाइड डिफरेंसेस, जनरली प्रोफेशनलिज्म में ऐसा होता है कि एक डॉक्टर ने एक कह दिया, दूसरा कहता है नो दैट इज ही इज रॉन्ग, आई एम राइट. इनफैक्ट इफ वी आर ऑल द कॉमन गोल ऑफ helping somebody enrich their life or solve their problems, spiritual healers, mental emotional healers and physical healers should all come together for a 360-degree development. So Yes. we could actually work with Together. people like you who have a different evolution, and we have a different evolution of our thoughts, and that would yield better results. So you mean to say that at physical level, emotional level, mental level, and at spiritual level, all the healers should come together. Yes. Then only the healing can be strong, Exactly. can be permanent, right? And to tell you the truth, I am working actually on this. Okay. I am completing my doctorate. Oh, you are? Yes. Oh, that's a fascinating change. I mean, congratulations. So I am completing my PhD Okay. in spiritual sciences. Okay. And I am actually working on this only. Oh, that's wonderful, and that's a great thought actually. All modalities coming together. Because if you leave any of this part, then it doesn't come in wholeness. Right. It doesn't come in oneness. To complete anything, you have to be in every way, in every nook and corner, physical modality, mental modality, emotional modality, spiritual modality. All these 4 things, 4 layers, 4 spheres have to come together. Then only
the problem is solved to such an extent that it dissolves. Right. Okay, so first, congratulations on, you're almost, like you said, you're almost completing your doctorate. मैं education field से, तो कोई भी educate होता है तो मुझे खुशी होती है. But one very commendable thing is, you have been always like a teacher to us. But when I see you as a learner, so massive respect for that. Because even I believe we should keep evolving, we should keep learning, we should keep developing ourselves further each day, because इसीलिए तो हम आए हैं. इसलिए तो हम आए. So And we are learning every day. Actually, every teacher is a learner. agree. Yes. Yes, teacher has to be a lighting lamp. When the teacher is in learning process, then only she can do teaching properly. Yes. That is what I feel. So every moment, you have to be in a learning phase. You have to learn, because there is in the universe so much infinite waiting for you. So much things are there for you to learn. Just what is required is your openness. Okay. Your openness to accept the things. Alright. So, ma'am, thank you so much for all the information. It was a lovely time talking to you. Even last time, even today. I'm personally very thankful कि आपने मुझे बुलाया इस podcast के लिए, and because I could get a lot of insights, understanding, and this is what I also believe, you keep evolving. So needless to say, I have evolved even in my own personal self. So personally, thank you for that. And I'm very sure all the people who are actually having troubles in life, जिनको भी कोई issues है या जिनको अपना life को enhance करना है, हम हर वक्त ढूंढते रहते हैं अलग अलग तरीके जिनसे हम कुछ तो हेल्प मिले, सपोर्ट मिले या गाइडेंस मिले. इन काफ़ी लोग हमारे पास भी आते हैं, कहीं कहीं हमारा भी लिमिटेशंस हो जाता है. आई फील वेयर वी गेट लिमिटेड, आई फील योर strengths come into the picture, and I'm really looking forward to working on the thesis. I would really love to have a look at it sometimes, because coming together and collaborating is the future. And not in terms of business, but in terms of overall, if we really have to help common people like you and me, we've come from common beginnings. अगर वैसा करना है तो सब लोगों को साथ आना ज़रूरी है. So a big thanks for your time and for your energy and for your knowledge. And to be very honest, मैं थक गया हूँ, but मुझे आप थके हुए नहीं लग रहे हो. And from my side also, I thank you, gratitude, because somewhere I feel that more than giving, I'm learning a lot from you. Right? So really thank you so much that you called me. We had this podcast together, and it really it will be beneficial for the whole society. Yes, of Because course. we I'm are- pretty sure. We are assets. Yes. And this is something for you, for your Oh, wife. one more gift. Yes. I love gifts. And Can I open it? you so open it and see. Oh, wow. This is a premium amethyst and citrine bracelet Okay. for your wife, for a beautiful wife. Okay. Oh, thank you so much. Yes. From her side. So it is really a lovely That's a nice piece, touch. and it's yes, and she will love it. And just let me know about it. Of course, I'm pretty sure. I mean, more than the bracelet, it's your blessings inside that what matters. Thank you so much again for this and for this, of course. So, all right, we'll see you another time then. Hoping to make further podcasts, further knowledge sessions. So instead of saying it just as a podcast, I would say so many knowledge sessions and interactions with you. I would love that. So, thank you. Thank you.